have here is we have a bar which is hung to a rope, and if I take it and if I whirl it like this, this motion that it follows is called as uniform circular motion. So the motion is uniform and circular at the same time. Okay, there would be action force and a reaction force. तो जो action force है उसको यहाँ पर बोला जाता है centripetal force. तो centripetal force कहाँ से आएगा? So if I have the motion of the body turning like this, तो मेरा जो हाथ है वो जो फोर्स दे रहा है that is the centripetal force. इसको बोलेंगे centripetal force. At the same time, उस एक्शन के लिए एक रिएक्शन फोर्स तैयार हो जाएगा इसमें, which is going to push it outwards, बाहर फेंकेगा बॉडी को. That would be the centrifugal force. This is Dr. Rishi from the Learners Academy, and today we are going to go ahead with the chapter force. Today we are going to do the third part of this chapter called uniform circular motion. The name itself indicates it's uniform circular motion. But before we go with uniform circular motion, let us just revise with what we did in the previous parts. So in the first chapter, we talked about force and the moment of force or the torque of the body. We also talked about couple. When we talked about couple, we saw that a couple would produce a purely rotational motion. So the best real life example for uniform circular motion is a merry-go-round. I hope all of you have sat on a merry-go-round. मेला वगैरह में गए होंगे, उधर बैठे होंगे उसमें, वो जो झूला होता है जो गोल 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 घूमता रहता है. If you can see, if you have experienced that, you'd know what I'm talking about. It has been such a fun in our life. बड़े मजे किए. भाई मैं तो बहुत बार बैठा हूँ. आप लोगों का पता नहीं. आजकल झूले भी काफी कम दिख रहे हैं, मेले भी काफी कम दिख रहे हैं. तो अभी अपन देखेंगे कि ये होता क्या है. Let us see कि ये uniform circular motion चीज क्या है, how it affects us and how we can apply it in physics. तो the name itself indicates uniform circular motion. पहली चीज है motion. Motion मतलब बॉडी मूव हो रहा है. दूसरी चीज है uniform. Uniform मतलब सेम है. तो बॉडी मोशन में है और बॉडी सेम भी है. और तीसरी चीज है circular. So the body is moving in circles. गोल गोल घूम रहा है. So there is a motion. Motion is uniform and it is in circles. बॉडी घूम रहा है, यूनिफॉर्मली घूम रहा है. यूनिफॉर्मली मतलब उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा. बेसिकली स्पीड चेंज नहीं हो रहा मतलब क्या नहीं हो रहा है? तो देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. एक्सेलरेशन नहीं है बॉडी में. इट्स गोइंग इन सर्कल्स. सो दो चीज है. एक तो मेरी-गो-राउंड है, वो वाला झूला जो हॉरिजॉन्टली घूमता है, और दूसरा है जायंट व्हील जो वर्टिकली घूमता है. अगर अपन जायंट व्हील ले लेंगे तो इट इज नॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम्स इनटू पिक्चर. सो द मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म. व्हाइल गोइंग अप एक्सेलरेशन वेलोसिटी को कम जाएगा, व्हाइल कमिंग डाउन एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाएगा. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू कीप इट इन माइंड. इफ यू आर सिटिंग इन अ जायंट व्हील and which is going into vertical circles, it is called as a vertical circular motion, and it is not uniform circular motion. Uniform circular motion would be given only by a merry-go-round, specifically when we talk about giant wheels and merry-go-rounds. So let us go ahead and see what this actually is, what the basic terms are, and how we can use it in our real life. Also, we will be talking about how to get very good marks on this particular topic. Now, what we have here is we have a bar which is hung to a rope, and if I take it and if I whirl it like this, this motion that it follows is called as uniform circular motion. So the motion is uniform and circular at the same time. Okay. Now let us see what would be the direction at each point. So though it needs to be in this particular way, I cannot show you the directions from that view. So let us change it to vertical and see what happens. The ball is going in circles like this. Now you need to focus on my finger. ये जो finger है इसके ऊपर focus करो. तो as my finger turns, you'll see that this is what is going to be the direction. So the direction of the ball ये ऐसा रहेगा. ये जो finger है उसी के साथ चलेगा. ये बहुत क्रूशियल है. If you see, it is tangential. मतलब ये जो मोशन है ये कैसा? It is along the tangent to the circle. ये वाला जो सर्कल है जो सर्कुलर मोशन में बन रहा है, ये सर्कल में it is always going to be the tangent at each and every point. Now it is difficult for me to show it in this particular way. So if you can refer to the figure here. So this would be the direction of motion at point A, B, C and D. अभी एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. The difference between uniform linear motion and uniform circular motion. तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या है? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है इन द सेम डायरेक्शन. तो अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और स्पीड कांस्टेंट है, मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा. बट एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पंगा ये है कि अपन वी आर मूविंग इन सर्कल्स. तो अगर गोल गोल घूम रहा है तो डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदल रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस द डायरेक्शन इज चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज हो रहा है. फिर आप बोलोगे यूनिफॉर्म कैसे हो गया? तो इधर स्पीड कांस्टेंट रह रहा है. तो स्पीड एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट इन द सर्कल, पर इसका velocity change होगा. इसका velocity would keep on changing because its direction is changing. Now, अभी देखते हैं कि what are the forces, basically what is the terminology that is used in circular motion, uniform circular motion. So किसी भी मोशन के बारे में बोलते तो according to Newton's third law of motion, forces would always appear in pairs. दो forces हमेशा रहेंगे. There would be action force and a reaction force.
तो जो एक्शन फोर्स है उसको यहां पर बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा? सो इफ आई हैव द मोशन ऑफ द बॉडी टर्निंग लाइक दिस, तो मेरा जो हाथ है वो जो फोर्स दे रहा है दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। एट द सेम टाइम उस एक्शन के लिए एक रिएक्शन फोर्स तैयार हो जाएगा इसमें, व्हिच इज गोइंग टू पुश इट आउटवर्ड्स, बाहर फेंकेगा बॉडी को। दैट वुड बी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर ढकेल रहा है। तो अभी आप में से जिन लोगों ने मेले में गए हो और झूले पर बैठे हो, झूला जोर जोर से घूम रहा है, तो आपने देखा होगा कि झूले के जो हॉर्सेस और वहां पर लटके होते हैं वो ऐसे बाहर निकल जाते हैं, बड़ा मजा आता है। इट्स क्वाइट स्कैरी एट टाइम्स, पर मजा बहुत आता है। तो वो जो बाहर खींचने वाला फोर्स है वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो जो मोटर वाला फोर्स है वो होगा अपना सेंट्रीपिटल फोर्स, जो झूले को घुमा रहा है। अभी ये इंपॉर्टेंट है। अभी अपन नाउ वी आर गोइंग टू फिक्स हाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन आई रिलीज दिस बॉल। सो अगर अपन इसको घुमाएंगे तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन आई रिलीज। जब मैं रिलीज कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो रहा है। तो ऐसा घुमाया 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 और उसको छोड़ दिया, एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। When we are in a uniform circular motion, there are two forces: centrifugal force, which is pushing the body outwards; centripetal force, which is pushing the body inwards. They are balancing each other out, and इसलिए वो अच्छे से सर्कल में घूम रहा है। अगर मैंने अपने हैंड का फोर्स छोड़ दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो गया, तो ओनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा और मेरी बॉडी सर्कल से बाहर फेंकी जाएगी। इससे हम लोग क्या पता चलता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज अ सूडो फोर्स। सूडो मतलब अनरियल या फिर झूठ मूठ का बोल कि एक ऐसा फोर्स है जो रियली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो तब तक ही एग्जिस्ट करेगा जब तक मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है। अभी we'll see some more examples about uniform circular motion। मेरा पर्सनल फेवरेट है मौत का कुआं, ये भी मेले में देखने को मिलता है। तो जैसे कि आपने देखा कि वो मोटरसाइकिलिस्ट या फिर वो कार चलाने वाला गाड़ी जोर जोर से घुमा रहा है और वो गाड़ी सर्कल्स में घूम रही है, उसको एक सर्टेन स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, तभी वो गाड़ी वैसे घूमेगी। अदर एग्जांपल्स दैट वी कैन सी इज इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो वो भी प्रोटॉन के आजू बाजू में घूम रहे हैं, मून वो भी अर्थ के आजू बाजू में घूम रहा है, देन सन विच इज गोइंग अराउंड इन around the galaxy, or Earth going around the sun. However, there is slight variation for planets because they form an elliptical path. इनका जो पाथ होता है वो एक इलिप्स करके रहता है, तो वो सर्कुलर नहीं है, तो अपन उसको सर्कुलर मोशन नहीं कंसीडर करेंगे। पर जो मून का पाथ है वो काफी हद तक सर्कुलर है। So friends, that was all about uniform circular motion, centripetal force and centrifugal force. This is Dr. Rishi from the Learners Academy. If you have found this video interesting, please give us a thumbs up, subscribe to our channel and share it with your friends. Bye bye.